I'll tell you what is the problem with the books. Books वालों को they have to teach you so much, and they don't have time, firstly, and secondly they do not have, Shiv, good evening, they do not have the space pages. सेल का चैप्टर एक्चुअली इतना मोटा चैप्टर है बाकी हायर क्लासेस में, तो व्हाट दे डू इज छोटे 4-5 लाइन लिख देंगे, माइटोकॉन्ड्रिया की बात में 3 लाइन लिख दी. यार यू कांट अंडरस्टैंड माइटोकॉन्ड्रिया विद 3 लाइंस, इट इज नॉट पॉसिबल. माइटोकॉन्ड्रिया इज पावर हाउस ऑफ द सेल, बहुत कुछ बताना उसके होता है इसके बारे में. So what we'll try is I'll explain everything to you so that video is there, it is in the video, और थोड़ा बहुत छोटा शॉर्ट में यहाँ पे. तो आपने करना क्या है, समझना है वीडियो से और मेरे बोलने से, याद करना है, अपने नोट्स बनाने हैं जो बोर्ड पे लिखा है उससे, और बुक की एक रीडिंग मारनी है. नोट्स में आई विल सेंड यू 3-4 सेट्स ऑफ नोट्स, सब सारे नोट भेज दूंगा, 3 या 4 सेट्स भेज दूंगा, जिससे पढ़ना पढ़ लो, तुम्हारी मर्जी है, कोई भी सेट से, बट उससे रीडिंग मारना है. लर्निंग होगी ये नोट से जो मैं बोर्ड पे लिखूंगा, और मेरे जो बोलना है जो मेरा एक्सप्लेनेशन है. Okay, Arna, just give me a moment. I will take the doubts, no problem. I'll take the doubts. But before that, let me just orient you guys. Class 8 is what we are doing. Science. Chapter also is a very, very, very strange thing. For last few days, class 6 is at chapter 6, class 7 is chapter 6, and tomorrow class 8 is chapter 8 and cell. Right. Guys, I am open for the doubts. Your doubts are most welcome. You can start asking one by one. Yeah. Hanji. Ask me, please. Yes, sir. So, how will we take out the value of a number whose power is in fraction? Okay. So I think कल भी ये बात हुई थी, आपने बोला था सर क्यूब और ये वाला क्वेश्चन, तो I'll just explain to you. प्रभुगुण, तस्मिया नहीं है क्लास में आज? हाँ, तस्मिया ने कहा था कि शायद क्लास नहीं अटेंड करेगी. प्रभुगुण, this question is from chapter of exponent and power of maths. We have done this, but it not to this level. ये क्वेश्चन जो है, ये जो डाउट इन्होंने पूछा है, थोड़ा हाई लेवल का डाउट है, तो but we have done this chapter, इस चैप्टर से है, मैं एक्सप्लेन कर रहा हूँ सबको. So let us say somebody gives you a number, it says find out the value of 16, 5/4, something like this. Yes, sir. Okay. Now there are two situations in this. If somebody tells me, just don't worry, I think it's light switching. All right. So if somebody gives you something like this, see, if you are given 2 raised to power 1/3, it is simply means 2 cube root 3. Somebody gives you 5 power 1/2, it simply means 5 ka square root. But if the number is such like this, now let's see what we can do. I can write this as 16. Now how can I write 16? 16 is 2 into 16 is 2 into 2 into 2 into 2. 2 to the 4 to the 8 to the 16, or 2 raised to power 4. Okay now? Ritvik, Harsha, Sia? Yes, sir. Yeah, Prabhugun? आपकी आवाज नहीं आई मेरे को अब तक. Yes, sir. हाँ जी. Okay. Prabhugun, I didn't hear your voice yet. Yes, sir. Okay, बेटा जब मैं बात करता हूँ तेरे से जवाब दिया कर. तूने ये क्या बैटमैन वाली वो लगा रखी है डीपी? यू आर बैटवुमन फैन और बैटमैन फैन? प्रभुगन, यू आर ए बैटवुमन फैन और बैटमैन फैन? अरे बच्चे जवाब दे. हाँ जी प्रभुगन. Very strange. In fact, I am a fan of Batman. The only superhero I like is Batman. Anyway, maybe it is your brother or somebody. Generally, I've not seen girls being fan of bats. They are scared of bats. Sir, I am. Okay. 2 raised to power 4. So I will write it as 2 raised to power 4, 5/4. Okay. क्वेश्चन प्रभुगुण का एक्चुअली मैथ्स का मेरे को थोड़ा कवर अप कराना है, तो इसमें मैं कुछ क्वेश्चन खासकर प्रभुगुण से पूछना चाह रहा हूँ. प्रभुगुण, कैन यू हियर मी?
प्रभुगुण, यस सर। बच्चे तेरा मैथ मेरे को कवर अप कराना, तेरे से कुछ क्वेश्चन पूछूंगा मैं तेरे को, अगर तेरे को आता है तो बोलना सर आई नो इट, आई कैन टेल यू, इफ यू डोंट नो इट जस्ट सिंपली से सर आई डोंट नो। ऑनेस्टी होता है, मेरे सीसीएल में सिर्फ एक ही रूल है, दैट इज ऑनेस्टी। टेल मी प्रभुगुण, इफ x raised to power m and whole raised to power n, this is equal to what? So you can have three options you have. Once you can tell the answer, second you can say sir I don't remember, I knew it but I don't remember, and thirdly sir I don't know. बताओ। सर आई डोंट नो। Okay, I'll tell you. एक्सपोनेंट पावर के अंदर आई थिंक एवरीबडी कैन टेल दिस, चैट बॉक्स के अंदर इसको इक्वेशन को पूरा करके बताओ मेरे को, लेट मी सी इन चैट बॉक्स हाउ मेनी पीपल कैन आंसर एंड हाउ फास्ट दे कैन आंसर। यस, x raised to power m, क्वेश्चन रिपीट कर दीजिए। x raised to power m whole raised to power n, बोर्ड पे भी लिखा हुआ है, चैट बॉक्स से हर्षा फिर डाल देना है, चैट बॉक्स में डाल दो सीधा सीधा आंसर। ओके, आई हैव आंसर फ्रॉम अर्णव। शिव आपका भी आंसर चाहिए मेरे को, शिव। फिर भी जो मेरा x है वो into है। ओके ठीक है, एक्सेप्टेड, आई विल टेक इट लाइक दैट। ओके प्रभुगुण ध्यान दो बच्चे, आपका साथ ही कराएंगे हम बाद में आपको। x की पावर m होल रेज टू पावर n इज ऑलवेज x रेज टू पावर, दोनों पावर मल्टीप्लाई हो जाएंगी। ओके प्रभुगुण, यस सर। दोनों पावर। अब बताओ मेरे को अर्णव, यहाँ पे बेस तो ये सेम है, इसकी पावर की पावर है, तो इट विल बिकम 4 into 5/4। ओके अर्णव? Okay, sir. Sir, but what if the base is 16, 17? हाँ बता रहा हूँ। So now in this case it is very easy. It is 2 raised to power 5 or it is 32. This is the answer. In case it is 17, so let us say A part, B part, C part, and let's say take this as D part. So 17 raised to power 5/4. Nothing can be done. It can only be written as this, just like that only. कुछ नहीं हो सकता इसका. The only way it can be written is this. Okay, sir. Right. Okay. Any other doubts? No, sir. मैं शुरू करता हूँ सेल। सर हम इसकी वैल्यू निकाल ही नहीं सकते। नहीं निकाल सकते इसकी वैल्यू। सर देन फिर ये इनवैलिड नंबर नहीं होगा। हायर मैथ्स में निकल जाएगी, साइंटिफिक कैलकुलेटर से निकल जाएगी, लेकिन नॉर्मल तुम्हारे लेवल पे नहीं निकलेगी। ओके सर। 9th में भी निकलेगी, 10th में भी निकलेगी। ओके ओके सर। राइट, ठीक है दोस्तों, चलो शुरू करते हैं। तो अब न्यूक्लियस हमारे को कंप्लीट क्लियरली हो गया, न्यूक्लियोलस होता है उसके अंदर, राइबोसोम आरएनए और डीएनए होता है उसके अंदर, ठीक है। अब हमने सेल मेम्ब्रेन की बात कर ली। कल मैं तुम लोगों को 3 डिफरेंस बताए थे जो कि सिर्फ प्लांट्स में मिलते हैं, दैट इज टू से सेल वॉल इज वन, देन इज योर प्लास्टिड पे बात रुकी थी आके, सेल वैक्यूल, प्लास्टिड भी समझाऊंगा मैं, आई थिंक एक क्लास और लगेगी इसके बाद। सर वैक्यूल्स पे रुकी थी, वैक्यूल्स पे रुकी थी, लेकिन वैक्यूल में चलते चलते बताया था कि ध्यान रखना, बट बाकी चीज अभी एक्सप्लेन नहीं की है, तो मैं उनको एक्सप्लेन करता हूँ पहले, प्लांट वाले तीनों पार्ट अलग से एक्सप्लेन करूंगा बाद में। सो दोस्तों एक एक करके देखते हैं। चलो मैं साथ में ये भी देख रहा हूँ कि तुम्हारे सिलेबस में उन्होंने कितना दिया हुआ, प्रोकैरियोट होगा यूकैरियोट। देखो एक तो इन्होंने बेवकूफ है ना, उल्टा पुल्टा कर रखा है। अच्छा इन्होंने ER नहीं दिया तुम्हारे अंदर, तो सिर्फ वही समझाऊंगा ना जो तुम्हारे उसमें, अगर मैम ने कुछ एक्स्ट्रा कराया तो मुझे बता देना, मैं बाद में अलग से कवर करा। फिर तो बहुत ईजी है यार, ये तो बहुत आसान है फिर। सेल मेम्ब्रेन को हम प्लाज्मा मेम्ब्रेन भी बोलते हैं। हियर सेल मेम्ब्रेन, ओके एक एक करके चलते हैं अभी। नेक्स्ट कम्स माइटोकॉन्ड्रिया। सो माइटोकॉन्ड्रिया इस तरह की शेप है, डबल इसकी वो होती है, इट हैज गॉट डबल मेम्ब्रेन, outside membrane is, this is outer membrane,
An inner membrane gets folded like this to increase the area on which cellular respiration will take place. So, mitochondria. This is called the powerhouse of the cell. आज एक वर्ड ध्यान रख लेना, ये बार बार मुझे शुरू में बताना चाहिए तुम लोगों को. साइटो जो है ग्रीक वर्ड है, इसका मतलब होता है सेल. ओके ऋत्विक चंदेल, इसका मतलब होता है सेल. तो साइटोप्लाज्म, सेल मेम्ब्रेन, ये सब साइटो वर्ड मतलब सेल है. ओके, सो माइटोकॉन्ड्रिया, ये बात अलग है, ये दिस इज अ डिफरेंट थिंग. ये मेरे को अभी याद आया तो मैं बता देता. Mitochondria. What is mitochondria? Powerhouse of the cell. Powerhouse. Why is it called powerhouse? Because it generates energy from oxygen and glucose. शिव, मेरी बात समझ में आ गई शिव? इसकी एक रिएक्शन होती है, लिख देता हूं, हालांकि तुम लोगों को याद होगी अब तक तो. प्रभुगुण ध्यान देना. इसकी रिएक्शन होती है ग्लूकोज प्लस, ओके सी, ग्लूकोज प्लस ऑक्सीजन विल मेक पायरुविक एसिड. ग्लूकोज 6 कार्बन का एटम मॉलिक्यूल होता है. इट्स 6 कार्बन मॉलिक्यूल. 6 कार्बन मॉलिक्यूल. सबको फॉर्मूला भी इसका पता होगा. ऋत्विक तावरी, व्हाट इज द फॉर्मूला? C6H12O6. ऑक्सीजन से मिलकर बनाता है पायरुविक एसिड विच इज 3 कार्बन मॉलिक्यूल. ज्यादा कंफ्यूज मत होना, सिर्फ समझा रहा हूं आपको. जो इक्वेशन लिखनी है वो बता दूंगा मैं. प्लस 2 ATP. अब नेक्स्ट जो रिएक्शन है वो इंपॉर्टेंट है. सॉरी, ये ऑक्सीजन नहीं था, सिर्फ ग्लूकोज का यहाँ पे ग्लाइकोलाइसिस हो जाता है. इसको बोलते हैं ग्लाइकोलाइसिस. ग्लाइकोलाइसिस. अच्छा, ये हो कहां रहा है जिया? ये काम कहां हो रहा है? ये काम हो रहा है साइटोप्लाज्म में, यहां बाहर, इधर साइटोप्लाज्म में. सिर्फ 2 ATP मिले, सिर्फ 2. ओके, अब देखो, जो मेन काम ये वाला काम माइटोकॉन्ड्रिया में होगा. ये पूरा काम माइटोकॉन्ड्रिया. ये काम हो रहा है माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर, इधर. सो पायरुविक एसिड प्लस ऑक्सीजन. अब ऑक्सीजन मिक्स होगी इसके साथ, जो कि सेल के अंदर आई है ब्लड के थ्रू, एंड देन इट विल गिव यू कार्बन डाइऑक्साइड प्लस वाटर एंड 36 ATP मॉलिक्यूल्स. ATP होता है एनर्जी. तो पूरी इक्वेशन को मैं शॉर्ट में दे रहा हूं तुम लोगों को, बिल्कुल शॉर्ट में दे रहा हूं. देखो, इस इक्वेशन को शॉर्ट में लिखेंगे हम लोग, एंड दिस इज कॉल्ड सेलुलर रेस्पिरेशन. So this is glucose plus oxygen will give you carbon dioxide plus H2O plus 38 ATP. इस 38 ATP की जगह याद ना हो, अगर प्रॉब्लम हो तो एनर्जी लिख देना बस. एनर्जी, कहीं कहीं हीट भी लिखा हुआ मिलेगा आपको. इट्स ओके, हीट और एनर्जी सेम चीज. ठीक है दोस्तों, डोंट बी कंफ्यूज विद दिस. ये है आपकी मेन इक्वेशन. ये है इक्वेशन, ये पूरी इक्वेशन है. दिस इज कॉल्ड सेलुलर. ये तुम्हें 9th क्लास में बड़ी डिटेल में पढ़ाया जाएगा. सो दिस रिएक्शन इज टेकिंग प्लेस एट माइटोकॉन्ड्रिया, ये वाली. तो इसलिए तो भैया माइटोकॉन्ड्रिया को पावर हाउस बोलते हैं. सारा का सारा ये होता है इसके अंदर. और जैसे मैंने बताया, माइटोकॉन्ड्रिया हमारी बॉडी के लिए इतना इंपॉर्टेंट है कि इसका खुद का, इट हैज इट्स ओन DNA, एंड ओन राइबोसोम. और क्योंकि खुद का इसकी खुद की फैक्ट्री है अपनी,
इसलिए इसको सेमी ऑटोनोमस भी बोला जाता है। इट्स ए सेमी ऑटोनोमस। यहां लिख रहा हूं, कहां लिखूं, कहां लिखूं, कहां लिखूं, यहां, यहां ठीक रहेगा। सेमी ऑटोनोमस, सेमी ऑटोनोमस मतलब फ्री। ये हाफ फ्री है, पूरा तो नहीं है, डिपेंडेंट तो है ही सेल पे। ओके, इसके अंदर ये जो फोल्ड होते हैं, इन फोल्डर को बोलते हैं, इसके बीच बीच में जो फोल्ड होते हैं, एक तो इसकी मैट्रिक्स होती है और इसके होते हैं क्रिस्टल। तो जहां 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 ये जो पार्ट है, इसको इसको मैट्रिक्स बोलते हैं। और जो ये इस तरह के फोल्ड्स होते हैं, क्रिस्टल, इसके बारे में पढ़ लेंगे अभी, ठीक। तो माइटोकॉन्ड्रिया क्लियर है भाई सबको? कोई डाउट हो तो बताओ। अभिनव, ऋत्विक, चंदेल, अर्शिया, जिया, Sir, no doubt. नो डाउट, No doubt. अर्णव, प्रभुगुण, No doubt. No doubt, sir. ऋत्विक, श्रिका, सिया, No doubt, sir. ओके, शिव शिव चौधरी, आवाज आती नहीं, से पहले अनम्यूट हो जाता भाई। वंश, ओके, No doubt, sir. ओके दोस्तों, अभी जो चीज सिर्फ बुक में देखा वही बता देता हूँ, फालतू बाद में जरूरत पड़ेगी तो बताऊंगा। ओके नाउ, अब हम देखते हैं वैक्यूल्स क्या होते हैं। सेल वॉल, वैक्यूल्स और प्लास्टिड सिर्फ प्लांट में पाए जाते हैं। एनिमल सेल में वैक्यूल होते हैं, लेकिन अगर होते हैं तो बहुत ही छोटे होंगे, जहां भी होंगे। प्लांट के अंदर वैक्यूल क्यों जरूरी है, देखते हैं। अमीबा के अंदर हमने देखा था वैक्यूल क्या कर रहा था। वैक्यूल फूड को कैप्चर कर रहा था। फूड को कैप्चर करने के अलावा वो फिर उसको खाने को पूरा निकाल देता था, ठीक है। तो अमीबा को वैक्यूल मैंने बताया था कि इस टाइप का अजीब सा वैक्यूल होता है। ये इसका न्यूक्लियस है, यहाँ खाना ले लेगा, फिर ट्रेवल करता रहेगा, खाना वो इधर खाएगा, डाइजेस्ट करेगा, उसके बाद यह बाहर निकाल देगा। ये तो अमीबा का वैक्यूल है। बट द वैक्यूल इन द प्लांट्स आर वेरी लार्ज and they have certain functions. Let us see what are the functions. Firstly, वैक्यूल, थोड़ा सा इसका अजीब सा वो है प्रोनाउंसिएशन भी, वैक्यूल, वैक्यूल ऐसा करके प्रोनाउंसिएशन इसका। ओके, मोस्टली इन प्लांट्स, मोस्टली इन प्लांट्स। Look at this. Let us say this is a plant cell. This much will be the vacuole, central vacuole बोलते हैं इसको, central vacuole. इसके अंदर जो लिक्विड होता है that is called cell sap. इसके अंदर जो लिक्विड है इसका नाम है सेल सैप। सेल सैप, सेल सैप पे क्या क्या है भाई? एक तो वाटर का रिजर्व है, वाटर रिजर्वायर है, वाटर रिजर्वायर। ये फ्रेंच वर्ड है रिजर्वायर, इसका एक्चुअल प्रोनाउंसिएशन है रिजर्वोयर। सो ये वाटर रिजर्वायर है, पहली बात सेल सैप। इसके अंदर मिनरल्स होते हैं जो कि स्टोरेज हो रही है, एक तरह से मिनरल्स की स्टोरेज हो रही है, मिनरल न्यूट्रिशन स्टोरेज। ये काम क्या है? फंक्शन सबसे बड़ा इसका ये है कि जो प्लांट है ना उसको टर्जिडिटी देता है। अभी एक वर्ड है टर्जिडिटी, प्रोवाइड टर्जिडिटी, प्रोवाइड टर्जिडिटी। अब तुम्हें बताता हूं टर्जिडिटी क्या होता है। देखो तुम कभी जैसे आप प्लांट को पानी नहीं दिया, आपने प्लांट को 4 दिन पानी दोगे तो उनकी पत्तियां ऐसे हो जाती हैं, टुक करके ऐसे मर सी जाती है। दैट इज कॉल्ड लैक ऑफ टर्जिडिटी। टर्जिडिटी बोले तो
एकदम फूला फूला बढ़िया फ्रेश फ्रेश, जैसे कुकुम्बर है आपके पास, अभी खरीद के लाए हो, अभी काट के खाओगे बढ़िया रहेगा। उसको उसमें रख दो, फ्रिज में रख दो 4-5 दिन 6 दिन, उसमें सिकुड़ जाएगा, टर्जिडिटी लूज हो जाएगी उसकी। टर्जिडिटी मतलब वो तो जस्ट उसका फूलापन, दैट सोलननेस काइंड ऑफ थिंग, I call it turgidity. Secondly, it provides strength to stand. Provides strength to stand straight. Strength to stand straight. जो प्लांट हैं, अगर उनके अंदर वैक्यूल्स नहीं होंगे ना, तो वो ऐसे ऐसे करके लुढ़क जाते हैं, वो क्रीपर टाइप के हो जाते हैं, क्लाइंबर टाइप के ऐसे लुढ़क जाते हैं। तो बेसिकली ये इसका फंक्शन है। नाउ कम्स प्लास्टिड्स। अभी प्लास्टिड भी यहीं पे हो जाएंगे कवर अपने। दोस्तों प्लास्टिड्स जो होते हैं ये सिर्फ और सिर्फ प्लांट्स में मिलते हैं। There are 3 type of plastids. Plastids. Firstly is chloroplast. Chloroplast. Where is it found? It is found in the green part of the plant. Basically leaves and some part of stem, whichever part is green. So green part of plant, green parts of plant. Example, leaves, टेंडर स्टेम होता है, बिल्कुल नरम सा होता है स्टेम, ओके। या फिर आपका जैसे कैक्टस है, कैक्टस के स्टेम में मिलता है, जहां भी ग्रीन पार्ट होगा होता है। एंड इट हैज व्हाट, इट हैज अ कलर्ड सब्सटेंस। अब तुम बोलोगे सर हमने हर बुक में हमें पिगमेंट क्या मिलता है, वो क्या लिखता है, वो पिगमेंट मिलता है, आप पिगमेंट क्यों नहीं यूज कर रहे हो? कलर्ड सब्सटेंस इसलिए नहीं यूज कर रहा हूं, बच्चे कंफ्यूज होते हैं पिगमेंट से। सर पिगमेंट क्या होता है? अरे भैया कलर्ड सब्सटेंस को ही पिगमेंट बोला जाता है। पिगमेंट का मतलब ही कलर्ड है। इट हैज ए कलर्ड सब्सटेंस पिगमेंट कॉल्ड, एनीवन? क्लोरोफिल। क्लोरोफिल, वेरी गुड जिया। एंड क्लोरोफिल का काम क्या है? क्लोरोफिल के बिना कोई भी फूड नहीं बन सकता। Helps in photosynthesis. not possible without chlorophyll. So this is point number 1 of this point. This is point number 2. This is point number 3. Photosynthesis not possible without chlorophyll. क्योंकि सन की जो लाइट एनर्जी है उसको एब्जॉर्ब करने का काम सिर्फ क्लोरोफिल ही कर सकता है। डबल एल आता है या सिंगल एल आता है? आई थिंक सिंगल एल है सर डबल आता। डबल है, ठीक। ओके जी, यहां तक तो हो गया पहला वाला क्लोरोप्लास्ट। अभी नेक्स्ट जो है दोस्तों वो है क्रोमोप्लास्ट। ज्यादा फर्क नहीं है, क्लोरो एंड क्रोमो। क्रोमोप्लास्ट, क्रोम का मतलब होता है कलर, क्रोम मतलब कलर। सो लाइक कुछ लीव्स, लीव का दैट पार्ट कलर्स अदर देन ग्रीन, कलर अदर देन ग्रीन। इसमें क्या क्या आता है? रेड, जैसे कुछ लीफ देखी हो तुमने, रेड कलर होता है उनका, किसी का येलो होता है। इसमें क्या क्या आ जाएगा? एग्जाम्पल, रेड, येलो, एटसेट्रा। एंड थर्ड इज ल्यूकोप्लास्ट। ल्यूकोप्लास्ट भाई ये ट्रांसपेरेंट होता है और ये फूड स्टोरेज के काम आता है। फूड स्टोरेज कहां पे? खासकर रूट्स के अंदर। तो जैसे आपका वो है रेडिश है, मूली, ठीक है। उसके अलावा एक तुम्हारा वो आता है, वो डू कॉल, जो रूट के नीचे आता है,
क्या बोलते हैं उसको, जो ऊपर से थोड़ा सा पर्पल पर्पल होता है, नीचे व्हाइटिश व्हाइटिश होता है, तो वो सब ल्यूकोप्लास्ट है, सारे के सारे ल्यूकोप्लास्ट है। तो हमने प्लास्टिड भी देख लिए। अब एक पॉइंट आएगा कंपैरिजन ऑफ एनिमल सेल प्लांट सेल, वो मैं तुम्हें वैसे ही समझा चुका हूँ, उसमें तो कोई टेंशन ही नहीं है। बस अब हम रीडिंग करके काम को खत्म करते हैं। आई होप दिस चैप्टर विल बी ओवर। एंड इसके बाद हम लोग क्या कर रहे हैं, मैथ्स का मैंने बताया था, विल डू मैथ्स। व्हाट इज दैट यू वांट टू डू? आज हो जाएगा खत्म चैप्टर। चलो चैट बॉक्स में लिख दो फटाफट क्या करना है। हाँ जी, चैट बॉक्स में बताओ क्या नेक्स्ट क्या करना है, नेक्स्ट क्या करना है। मैथ्स में हम बहुत पीछे चल रहे हैं यार। लीनियर इक्वेशन नहीं करा किया ना अब तक? सर खत्म कर दिया। अंडरस्टैंडिंग क्वाड्रिलेटरल्स। ओके, तुम लोग लिखो जरा जल्दी, मैं भी देख लूं। सब लोग अपने अपना रिकमेंडेशन दो। क्या हो गया भाई लाइट को आज? तो लाइट ने तो आज बिल्कुल बैंड ही बजा दिया। सब लोग लिख दो। हैं? देखो रेशनल नंबर हमने कर लिए, लीनियर इक्वेशन हमने कर ली, तो फिर आई थिंक इट विल बी वाइज इफ वी डू द अंडरस्टैंडिंग क्वाड्रिलेटरल्स नेक्स्ट। ओके सर। है ना? मेरे ख्याल से समझदारी रहेगी कि रहेगा। उसके बाद मेटल नॉन मेटल, मेटल नॉन मेटल हम कर चुके हैं शिव, मेटल नॉन मेटल हो चुका है। फिर भी करा दूंगा बाद में। क्वाड्रिलेटर ठीक है, क्वाड्रिलेटर करते हैं दोस्तों इसके बाद, अंडरस्टैंडिंग क्वाड्रिलेटर। ठीक है, राइट, ओके। माइक्रो ऑर्गेनिज्म कर लिया क्या हमने साइंस में? नो सर। नहीं किया, वही बचा हुआ। चलो ठीक है, करते पहले फटाफट आज ये चैप्टर खत्म करते पहले। राइट गाइस, मैं नोट्स प्रेजेंट कर रहा हूँ, प्लीज स्टार्ट रीडिंग। जिसको भी मैं नॉमिनेट कर देता हूँ अभी। शिव पहले तुम, सबसे पहले तुम तैयार हो जाओ। शिव चौधरी, आवाज ही आनी बंद हो जाती है इसकी जैसे मैं रीडिंग का नाम लेता हूँ तो। शिव, सर इसमें सेंट्रोसोम नहीं है। सेंट्रोसोम नहीं है दिया, एक मिनट देख लेते हैं। सेंट्रोसोम में बता दूंगा क्या होता है। ओके दोस्तों, एक वर्ड आएगा तुम्हें इसमें, सेंट्रोसोम नहीं है शायद से, बट मैं समझा देता हूँ। सेंट्रोसोम अभी समझा दूंगा, थोड़ा सा आगे चलते हैं। सेंट्रोसोम होता है, इस सेंट्रोसोम के दो फंक्शन होते हैं। प्रोकैरियोटिक कर लिया, यहां से पढ़ना है हमें। सेल ऑर्गेनेल्स, सेल ऑर्गेनेल्स। या शिव कंटिन्यू करें आप। ऋत्विक पहले क्वाड्रेटर कराता हूं, उसके बाद मेंसुरेशन कर लेंगे। मेंसुरेशन बहुत इजी। शिव की तो आवाज ही नहीं आ रही। सर उसके बाद इंट्रोडक्शन टू कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री कर सकते हैं। ठीक है, ओके, राइट। सर स्क्रीन हाँ, शेयर नहीं हो रही। स्क्रीन शेयर नहीं हो रही? ओके, एक मिनट कर रहा हूँ। ओके, ऊपर से शुरू कर रहा हूं मैं। ऋत्विक चंदेल आप शुरू करें सबसे पहले, देन अर्षा बी रेडी प्लीज आफ्टर दिस। कौन से पॉइंट से? पॉइंट नंबर 39, सेल ऑर्गेनेल्स। Cell organelles. A cell performs different functions with the help of various small, highly specialized structures called organelles. Present in सर ये क्या लिखा है? प्रेजेंट इन साइटोप्लाज्म। साइटोप्लाज्म जो होता है इसके अंदर जूस जो होता है सेल के अंदर। हाँ, Present in cytoplasm. Some of these are given below. रीड करता रहे एक एक करके। माइटोकॉन्ड्रिया, माइटोकॉन्ड्रिया, Mitochondria. They are tiny rod-shaped
structures with provided energy, which provide energy for all the activities of the cell by oxidizing food. Thus, often called the powerhouse of the cell. Vacuoles. These ओके, are तो प्रोनाउंसिएशन क्या बताया मैंने? वैक्यूल. ठीक है, ओके, एक मिनट होल्ड कर. ऋत्विक आप होल्ड करो. अर्षा प्लीज टेक ऑन फ्रॉम हियर. वैक्यूल्स. Yes, sir. Vacuoles. These are sac-like structures containing a solution of mineral salt and sugar, that is cell span. In plant cells, the vacuoles are large, distinct, and permanent, occupying most of the volume of the cell. On the contrary, an animal cell has small and temporary vacuoles, or it may be absent. टोटली एब्सेंट. तो मैंने समझा दिया था तू लोगों को. ये वैक्यूल में सब दिखाया था. सेल सैप रहता है, उसके अंदर बहुत सारे, उसके अंदर विटामिन रहते हैं, वाटर रहता है, सब कुछ रहता है. ओके, बस सबको थोड़ा थोड़ा पढ़ा रहा हूँ. गाइस एक मिनट होल्ड. जिया टेक ऑन फ्रॉम हियर. प्लास्टिड्स की बात हो रही है. प्लास्टिड्स बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों. मैंने अभी समझा दिया आप लोगों को. या प्लास्टिड्स. They occur in most plant cells and are absent in animal cells. They are often of different colors and types as given below. First, chromoplasts. These are the colored plastids, except green, give fruit and flower their color. Second, leucoplasts. These are the colorless plastids, store fruit, store food. Third, chloroplasts. These are the green colored plastids, also called kitchen of the cell. They contain the green pigment, chlorophyll, that is essential for photosynthesis and provide green color to the leaf. Plastids and mitochondria also have a DNA, apart from nucleus. In addition, there are endoplasmic reticulum, Golgi bodies, ribosomes, lysosomes, peroxisomes, and centrosomes, about which you will study in further classes. Okay, guys. Just very important point here. So there are three So your screen is organelles. presenting. Thank you. There are three organelles other than nucleus which have their own mitochondria, double membrane, and or ribosomes. देखो, सबसे पहले तो जो बॉस है वो तो न्यूक्लियस है भाई. न्यूक्लियस के पास क्या क्या चीज स्पेशल है? पहली बात, डबल मेम्ब्रेन. जो न्यूक्लियस मेम्ब्रेन है वो डबल होती है. दो लेयर होती है उसकी. डबल मेम्ब्रेन. नंबर 2, ओन डीएनए, खुद का डीएनए अपना. थर्ड, ओन राइबोसोम, खुद के राइबोसोम है. लेकिन 3 और ऑर्गेनल्स हैं जो कि इतने इंपॉर्टेंट हैं, उनको इतनी इंपॉर्टेंस दी है नेचर ने कि उनका अपना सिस्टम बना हुआ है पूरा. कौन कौन से? सॉरी, 2, 3 नहीं, 2. Excuse me, sir. हाँ जी, एक मिनट होल्ड कर. एक मिनट होल्ड कर. तो माइटोकॉन्ड्रिया के पास ये पूरी की पूरी फैसिलिटी अवेलेबल है. कौन सी वाली? ये तीनों फैसिलिटी. एंड दूसरा है प्लास्टिड्स. नाउ देयर इज अ थ्योरी, सम साइंटिस्ट्स हैव सेड दैट ये तीनों इसके पास भी. तो 3 प्लांट ऐसे जिनका माइटोकॉन्ड्रिया और प्लास्टिड है. कुछ साइंटिस्ट का ये मानना है कि जब हम माइटोकॉन्ड्रिया हमने खाया प्लांट का, माइटोकॉन्ड्रिया हमारे पास शुरू में था नहीं. जब हम प्राइमरी क्रीचर्स थे, बिल्कुल छोटे छोटे, जब माइटोकॉन्ड्रिया बॉडीज में आया तो माइटोकॉन्ड्रिया वाज सपोज्ड टू बी ईटन, बट द animal body, organism body, did not eat it because it found that it is very useful in oxidizing the glucose and giving more energy. So over a period of time, mitochondria has become a part of our organelles, which initially it was not. Similarly, the microorganisms, the plants, they somehow found plastid in their food. बिकॉज ऐसे ऑर्गेनल है ही नहीं जिसके खुद के आरएनए और डीएनए. तो ये एक्चुअली खुद के क्रीचर थे. दैट्स व्हाट साइंटिस्ट से कि खुद क्रीचर थे भैया. ये खुद क्रीचर थे. माइटोकॉन्ड्रिया इंडिपेंडेंट बाहर, प्लास्टिड इंडिपेंडेंट बाहर. ये तो अपनी एक मेम्ब्रेन लेके आए. हमारी बॉडी ने कहा यार ये तो बंदा खाने की चीज नहीं है, ये तो काम की चीज है, इसको एक और मेम्ब्रेन अपनी तरफ से लपेट दी, तो डबल मेम्ब्रेन हो गई. राइबोसोम भी खुद का लेके आया था और प्लास्टिड भी खुद का लेके आया था. तो ये 3
चीजें हैं जिनके खुद के प्लास्टिक पार्टिकल। एक एक मिनट में आ रहा हूं तुम्हारे पास। अच्छा दोस्तों, दूसरी बात है, जिया पता नहीं तुम क्यों पूछ रही हो सेंट्रोसोम, बताऊं अगर जरूरी है तो, अगर सिलेबस सर में मेरी है। बुक में है। ओके, सो सेंट्रियोल्स और सेंट्रोसोम, दोस्तों होता क्या है, ये जो अपनी है ना सेल, इस सेल ऐसा नहीं है कि बिल्कुल ऐसी खड़ी हुई है। अंडे की बात अलग होती है, बाकी कुछ सेल्स ऐसी होती है, उनके अंदर पूरा एक साइटोस्केलेटन होता है, साइटोस्केलेटन। तो जैसे शादी में शमियाना लगता है, मोदी जी कहीं वो दे रहे हैं तो वहां शमियाना लगता है, यानी कि टेंट टाइप के लगते हैं। तो टेंट के अंदर जैसे पोल लगाते हैं ना अपन, इधर उधर पोल है ऐसे करके, तो सेल के अंदर भी एक साइटोस्केलेटन होता है जो कि इसको इसकी शेप दे के रखता है। तो ये क्या कर रहा है, सेंट्रोसोम, ये सेंट्रोसोम्स होते हैं, ये पाइप्स है एक्चुअली। इनका काम है क्या है, एक तो स्ट्रक्चर देना, स्ट्रक्चर नंबर 1, और नंबर 2 ट्रांसपोर्टेशन। यानी कि ये जो पाइप टाइप के होते हैं, इन पाइप से एक जो प्रोडक्ट्स हैं एक जगह से दूसरी जगह जाते हैं सेल के अंदर। कई बार ये ऐसे क्रॉस भी होते हैं, ज्यादातर 90 डिग्री पे होते हैं। तो इनका मेन काम ये है। बट सेल डिवीजन के टाइम पे, थर्ड इंपॉर्टेंट वर्क इज एट द टाइम ऑफ सेल डिवीजन देयर हैव ए वेरी यूजफुल रोल। अब क्या रोल है, वो बहुत डिफिकल्ट है, डिफिकल्ट तो नहीं, एडवांस्ड है, वो 10th में भी नहीं पढ़ाते। यूजफुल फंक्शन व्हेन एट द टाइम ऑफ सेल डिवीजन। This point is very, very important. So I'm putting it double. This is a normal function, so I'm putting double star. बहुत important point है. Arnav, hold your doubt. Okay. Okay, sir. Now, guys, this is understood. I want to show you centriole. तस्मिया, गुड इवनिंग। Good evening. कहाँ रह गए थे आज आप? Sir, I was busy. अच्छा, Sir, I'll watch the video. ठीक है बेटा, वीडियो तो ठीक है, क्लास के अंदर कोशिश किया कर बच्चे, क्लास मत मिस किया कर, ठीक है? Okay, sir. ओके, सेंट्रियोल्स। ओके दोस्तों, देखो सेंट्रियोल का मैं फोटो दिखा रहा हूँ, अभी भी मैं समझाया तुम लोगों को सेंट्रियोल। नाउ सी दिस, राइट जी। ये देखो सेंट्रियोल, ये है सेंट्रियोल्स। ओके, देखो पाइप टाइप के फंक्शंस हैं, पाइप टाइप के स्ट्रक्चर्स हैं, ये देखो पाइप टाइप के अंदर स्ट्रक्चर्स हैं। ये उसको वो दे रहे हैं, स्ट्रक्चर दे रहे हैं सेल को। सेल को देखो तंबू टाइप, जैसे तंबू के अंदर वो डंडे लगे रहते हैं तंबू को खड़ा करने के लिए, यही काम है। ये देखो सेंट्रियोल्स पाइप टाइप के होते हैं, इससे अपना सामान भी एक जगह से दूसरी जगह जाता है। फंक्शंस ऑफ सेंट्रियोल्स आर प्रेजेंट इन एनिमल सेल बट नॉट इन प्लांट सेल। हाँ, ये पॉइंट है, प्लांट सेल के अंदर नहीं मिलते सेंट्रियोल्स। सेंट्रियोल्स आर यूज्ड फॉर एनिमल सेल्स टू रिप्रोड्यूस, दे रिलीज लॉन्ग स्टिफ फाइबर कॉल्ड माइक्रोट्यूबुल, जो कि सेल डिवीजन के टाइम पे मदद करते हैं। ट्रांसपोर्टेशन भी होता है इनसे, सेंट्रियोल से। ओके, बट ये बाकी का काम जो बड़ा हाई लेवल का है। ओके जी, अब मैं यही छोड़ रहा हूँ इसको। ओके, सो फार सो गुड। ओके, राइट। दोस्तों एक चीज और से बतानी है आप लोगों को, I'll come to you, don't worry. Okay, now having told this, now there are certain more organelles. I'll just list them down. उसके बारे में ज्यादा बात नहीं करूंगा क्योंकि I want to finish off this and tomorrow we are starting maths, quadrilaterals chapter. Yeah. So what are the other organelles which we have not discussed? Let us look at them one by one. मैं थोड़ा सा स्टोरी टाइप में ही बता देता हूं ताकि कल वीडियो देखोगे तुम्हें फिर रटना नहीं पड़ेगा। सो अपना सेल मेम्ब्रेन,
साइटोप्लाज्म, न्यूक्लियस। ये मैंने बताया डबल डबल मेम्ब्रेन है। ओके दोस्तों, न्यूक्लियस से निकलता है जब राइबोसोम, तो सबसे पहले जाता है देयर समथिंग कॉल्ड RER। इट इज कॉल्ड रफ, ROUGH, रफ एंडोप्लाज्मिक। याद करने के लिए स्पेलिंग ब्रेक कर दिए मैंने, अदरवाइज एक वर्ड है रेटिकुलम। जब याद हो जाएगा तो एक वर्ड बना लेना इसको। शिव समझ में आया मेरी बात? रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, RER। दूसरा होता है, अच्छा व्हाट डज इट डू? इट प्रोड्यूसेस प्रोटीन, प्रोटीन प्रोडक्शन, प्रोटीन प्रोडक्शन। नेक्स्ट इज, और ये कहां होता है? RER यही यही चिपका होता है, ऐसे करके ना, इसकी लेयर टाइप की लगी रहती है इसके साथ ही। अच्छा, इसको रफ इसलिए बोलते हैं कि इसके ऊपर राइबोसोम चिपके रहते हैं। दीज आर ऑल, तो ये आपका हो गया RER। और ये जो चिपके हुए हैं डॉट हैं, ये राइबोसोम। राइबोसोम चिपके भी रहते हैं और यहां फ्लोट भी करते रहते हैं ऐसे करके। तो दोस्तों एक तो ये हो गए। नेक्स्ट कम्स SER, स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। इसको स्मूथ क्यों बोलते हैं? स्मूथ ER। इसके ऊपर नो राइबोसोम। इसका क्या काम है? फैट प्रोडक्शन। ये फैट बनाता है, फैट यानी कि लिपिड। और ये बनते कहां से? सब माल बनेगा कहां से? रॉ मटेरियल कहां से आया था? कैटाबोलिज्म में जो ब्रेक डाउन हुआ था, उसी को अब ये एनाबोलाइज कर रहे हैं, एनाबोलिज्म कर रहे हैं, फैट और लिपिड। तो ये भी यहीं आता है यार, ये इधर ही चिपका रहता है भी साथ में, यहाँ पे ऐसा करके ऐसा। ओके, तो ये SER हो गया। ये SER हो गया, फैट बन गया। अच्छा, इन्होंने अपना माल बना लिया, इन्होंने माल तैयार कर लिया। अब आ गया अपना पैकर एंड मूवर। कैमिलियो गोल्जी करके एक इटालियन साइंटिस्ट थे, उन्होंने इसकी इसकी वो की थी, खोज की थी। इसको गोल्जी एपैरेटस भी बोलते हैं और गोल्जी बॉडीज भी बोलते हैं। ये है अग्रवाल पैकर एंड मूवर। अग्रवाल पैकर एंड मूवर मतलब क्या? ये कहां रहता है? ये इनके साथ चिपका रहता है ऐसे, इनके साथ। तो जो यहां से सामान बनता है, इनको पास कर देते हैं, इसको दे देते गोल्जी एपैरेटस को। तो ये क्या करता है? इसको पैकेजिंग करता है। पैकेजिंग का मतलब थोड़ा सा मॉडिफाई भी करता है उसको, उसमें मिक्सिंग भी करता है, कुछ मॉडिफिकेशन एंड ट्रांसपोर्टेशन। सपोज करो थोड़ा सा इसने यहां से प्रोटीन लिया, इस बंदे से, इससे प्रोटीन लिया, इधर से फैट लिया, उसको कंबाइन करके एक चीज बनाएगा जिससे जिससे कि ये सेल मेम्ब्रेन बनेगी, रिपेयर होगी, रिपेयर होगी। इस प्रोसेस को बोलते हैं बायोजेनेसिस। बायोजेनेसिस कौन कर रहा है? गोल्जी एपैरेटस। दिस इज गोल्जी एपैरेटस, गोल्जी। ओके, देन दे आर टॉकिंग अबाउट, ओके, राइबोसोम्स तो हो गए, राइबोसोम तो हमने बात कर ली। राइबोसोम प्रोड्यूस प्रोटीन। फिफ्थ है लाइसोसोम्स। लाइसोसोम भाई सुसाइड बैग, सुइसाइड बैग्स। कोई भी गलत मटेरियल आता है उसको वो करता है। फिर सेंट्रोसोम और सेंट्रियोल्स। सेंट्रोसोम मैंने समझा दिया अभी, सेंट्रोसोम का क्या काम है, कैसे पाइप टाइप के होते हैं। ठीक है, तो सेल डिवीजन मेन काम,
Side business, cytoskeleton, and transportation. They are made up of microtubules. छोटे छोटे ट्यूब से बनते हैं microtubules. और तो कुछ नहीं. पेरोक्सिसोम क्या होता है यार? Peroxisome. Peroxisome is a membrane-bound organelle forming a microbody found in cytoplasm virtually or peroxisomes are oxidative on their own to hydrogen generating a scavenging activity. तो कुछ है नहीं. इसको छोड़ रहा हूं मैं. इसको कोई भी पूछने वाला तुमसे ना आएगा. ये मेरे को याद आ गया. ये हाइड्रोक्साइड करते हैं. जो भी कंपाउंड होते हैं उनको साफ सफाई का काम करते हैं. ऑक्सीडेटिव ऑर्गेनल्स होते हैं. चलो लिख देता हूं. Peroxisome. Oxidize and scavenging. जो भी कचड़ा है उसको निकाल देते हैं बॉडी से. ओके. आई वांट समवन टू नाउ क्विकली अर्नव जल्दी से फटाफट पढ़ना शुरू करें. मैं आई विल कम टू योर डाउट. डोंट वरी. योर डाउट विल बी टेकन. नाउ कम टू दिस कंपैरिजन ऑफ प्लांट एंड एनिमल सेल्स. दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन. चैप्टर में से जरूर आता है ये वाला क्वेश्चन. हाँ पढ़ अर्नव भाई पढ़. Sir, your screen isn't shared. अरे यार चलो. Yeah. Go ahead, please. Comparison of plant and animal cells. Comparison of plant cells and animal cells. There are certain features that distinguish a plant cell from animal cell as shown below. Differences between plant cells and animal cells. First point. Cell wall. The presence of cell wall composed of cellulose means that the plant cells are regular in shape, whereas cell wall is absent in animal cells. Second, vacuole. It is a large and permanent in plant cells. The water inside this is necessary for turgidity. It can also store ions and molecules. On contrary, vacuoles are small and temporary in animal cells. Third, chloroplasts. Plant cells contain chlorophyll and is the site of photosynthesis, whereas it is absent in animal cells. Fourth, cytoplasm. It is often denser in animal cells than plant cells. Fifth, secretory वेसिकल्स. एक मिनट. हमारी बॉडी में बहुत सारे एंजाइम्स निकलते हैं जो हमारे खाने को डाइजेस्ट करने में हेल्प करते हैं. सलाइवा से शुरू होता है. सलाइवरी एमिलेस होता है. उसके बाद स्टमक में निकलते हैं. उसके बाद स्मॉल इंटेस्टाइन में निकलते हैं. हर जगह निकलते हैं. तो ये प्लांट्स में नहीं निकलते. हाँ जी. प्लांट का खाना बना बनाया आता है बिल्कुल रेडीमेड. Secretory vesicles. These are more common in animal cells, such as cells producing digestive enzymes, whereas these are almost absent in plant cells. Plastids. These are present in plant cells but absent in animal cells. ओके. ये बड़ा ऊटपटांग सा दे रखा है लोगों ने कंपैरिजन. आई विल सेंड यू अदर नोट्स आल्सो. जिस नोट से अच्छे लगे उससे कर लेना. वैसे तो मैंने समझा ही दिया कि मोटा मोटा ये. दोस्तों एक चीज मेरे दिमाग में क्या आई थी अभी. ओके चलो. राइट. इफ इट कम्स टू माय माइंड आई विल कम बैक टू यू. राइट. प्रभगुण काइंडली कंटिन्यू फ्रॉम हियर. कॉमन फीचर्स. क्या क्या कॉमन है प्लांट? Common features of plant and animal cells. First, cell membrane. This surrounds the cytoplasm, regulates movement of particles into and out of the cell. सेल. तो सेल मेम्ब्रेन काम क्या है? कुछ कौन अंदर जा रहा कौन बाहर जा रहा सब डिसाइड करती है सेल मेम्ब्रेन. या प्लीज कंटिन्यू. Cytoplasm. It is made up of water which has substances such as amino acids and sugars dissolved in it. Provides support for the organelles. Some reactions such as
Glycolysis take place in cytoplasm. मैंने तुम्हें बताया था एक रिएक्शन जो होते हैं हमारे ग्लूकोज को ब्रेक डाउन होता है एनर्जी के लिए, उसका पहला स्टेप ग्लाइकोलाइसिस, वो साइटोप्लाज्म होता है। बाकी की कार्रवाई कहाँ हो रही है? माइटोकॉन्ड्रिया में। क्या कंटिन्यू प्लीज। Nucleus. It contains the genetic material DNA, making up genes which in turn make up chromosomes. Each gene codes for a protein. Chromosomes only become visible during division. क्योंकि उससे पहले क्या होता है? मैगी नूडल, वो क्रोमेटिन ऐसे लिपटा रहता है, जो रुई का वो होता है, उनका वो होता है ना छल्ला डब्बा टाइप को, उस पर जब होता है तो नॉर्मल क्रोमेटिन। सेल डिवीजन के टाइम पे फिर वो अलग अलग हो जाएंगे, पेयर्स में ऐसे नीटली अरेंज हो जाएंगे। क्या लास्ट पॉइंट? Mitochondria. These are the site of energy production for the एन इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन। दोस्तों ये क्रेब साइकिल बहुत लंबा है, 48 स्टेप होते हैं। ये सारी की सारी कार्रवाई जो ग्लूकोज को एटीपी में बदलने की है वो यहाँ होती है। क्रेब साइकिल इज अ लॉन्ग प्रोसेस इन विच स्टेप बाय स्टेप वी सी कि क्या एक साइंटिस्ट क्रेब उन्होंने डिस्कवर किया था कैसे हमको फाइनली हमें एनर्जी मिलती है। इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन होती है इसके अंदर एक, तो क्रेब साइकिल क्रिएट होता पूरा। और नाउ आस्क मी योर डाउट, वी हैव जस्ट 30 seconds left. Yes, sir. Sir, why do some specific cell organelles have their own DNA? ओके, दिस क्वेश्चन वी विल आंसर लेटर। ये लंबी कहानी का मतलब साइंटिस्ट के पास ये एक रीजन ये है कि दीज आर सो इंपॉर्टेंट, इफ दीज ऑर्गेनिजम्स आर नॉट देयर द ऑर्गेनिजम्स विल नॉट लिव, दे विल डाई। हमारे पास माइटोकॉन्ड्रिया नहीं होगा या प्लांट के पास नहीं, तो हम मर जाएंगे, एनर्जी खत्म हो जाएगी, ठीक है। और प्लास्टिड नहीं होंगे तो खाना कहाँ से बनेगा भाई? उसका खुद का डीएनए, वो इसलिए किया जाता है ताकि वो इट इज नॉट डिपेंड, सेल के अंदर कोई डैमेज हो भी जाए इट कैन क्रिएट इट्स ओन replications, copies. Okay, sir. Okay. And sir, what benefit does this own DNA give to the cell organelle? बस यही है कि वो सेमी ऑटोनोमस रहता है, इट हैज गॉट मोर पावर एज कंपेयर्ड टू अदर ऑर्गेनल्स। Okay, sir. चलो, ऑलराइट गाइस, सी यू टुमारो। थोड़ा सा लेट हो रहा है, सो वी विल टुमारो वी विल गोना स्टार्ट अ न्यू चैप्टर and we meet tomorrow. Bye bye guys, please revise from the video, we will have a test one of these days from this chapter. Chalo, bye 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 bye. Bye, Bye, sir. sir. Bye, sir. Good night. Bye guys, good night everyone, good night. Bye, sir. Bye 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 guys, bye guys, bye 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 guys, bye 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 Abhinav.